Om Shri Sai Ram, my humble pranams at the divine lotus feet of our most beloved Bhagwan, Shri Sanjay Sai Baba, and a warm welcome to all the viewers for this divine program of Guru Purnima celebrations 2021-2022. मुंबई चैप्टर प्रेजेंट द स्मरण फॉर्म ऑफ भक्ति। स्मरण से भक्त और भगवान भक्ति में एक हो जाते हैं। ओम श्री साई राम। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर मुंबई चैप्टर चेयरमैन श्री गोपाल कृष्णन टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। Koti pranams at the lotus feet of Bhagavan Sri Sanjay Sai Baba. Sai Ram to all. Today is the third day of our Guru Purnima celebrations, July 21. In the series of Navavidha Bhakti, after Shravanam and Kirtanam, we come to Smarana. Baba says Smaranam means remembering, recollecting, reliving the memories spent with Bhagavan. Namasmaranam gives us vitamin G, that is God, which drives away all our depressions. As we all know, in Kali Yuga, Namasmaranam is the easiest pathway to God. Chanting the name is enough to give us the required results of every type of sadhana. Bhagavan Baba says in Guru Upadesh, the person who is busy in the contemplation of God, both he and his mind become glorious and beneficial with right words, right thoughts, and right actions. Now it is the question is how, when, and where should I do Namasmarana? Do I need special qualification or special place? Lot of money and time? Not at all. नामस्मरण बहुत आसान है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान को कोई भी कार्य करते हुए याद कर सकता है. Thus we do Namasmaranam at any place, anywhere, and manner in which we enjoy. Worshipping God early in the morning is our tradition. This is good habit. When we wake up, thank God for the previous night and another wonderful day He has given. Remember God while bathing, eating, going to college, school, office. In the midst of your busy schedule, you can remember Him as often as you can, and particularly before going to bed. There is no diksha or for occupying a special seat for smarana. Bhagavan says,
you can remember and recollect the moments and the experiences and share them with all, or for your own self. This is the best smaranam one devotee can do. जैसे मदर अपनों बच्चे को याद करती है, एक प्रेमिका एक प्रेमिका प्रेमी को याद करते हैं, एक दोस्त को याद करते हैं, ऐसा ही हम भगवान को याद कर सकते हैं. Baba says, even if a single message, if you put it into practice of mind, you will be more successful in life. In the earlier yugas, it was Sambhavami Yuge Yuge, wherein we have heard of Narada, Bhatta Prahlada, Shabari, and Hanuman. Then it was Sambhavami Pade Pade, wherein we have heard the stories of great saints, Tukaram, Jnaneshwar, Chaitanya Mahaprabhu and Avaya. Now it is constant smaranam, that is Sambhavami Pale Pale. God helps his devotees in any form. Only we have to be alert and aware to remember him always. We are so lucky to have Sri Sanjay Sai Baba as our God and Guru. Let us all follow his path shown by him. Today, Sri Sanjay Sai Seva Organization International Mumbai chapter is presenting a program on Smaranam. Let us all come together and enjoy the program. Sai Ram. Thank you, Gopal Bhai, for sharing with us such beautiful thoughts. Om Shri Sai Ram. Smaranam is remembering God at all time. Smaran is the path to spiritual growth that takes us to God. So, we now present to you this form of bhakti as expressed by our soul blossom children as Shabri, Narad and Prahlad. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे हिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे हिलाते नहीं. Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Today we are going to present a small skit on Shabri. माता शबरी हमेशा भगवान राम का स्मरण करती है. जय श्री राम, जय श्री राम. गुरुजी, why are you like this? What is happening to you? प्रिय शबरी, मुझे बुलावा आया है. अभी मुझे ये जग छोड़कर जाना होगा. गुरुजी, फिर मैं अकेले रह जाऊंगी. कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो. मैं यहाँ अकेली नहीं रह पाऊंगी. कृपा कीजिए गुरुजी. How did I come to this ashram? I ran away from home because father was going to kill so many goats for feeding the guests at my wedding. Thanks to my beloved Guru who gave me shelter, I am able to lead a happy life today. वह मेरे माता, पिता और सब कुछ है. वह नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी? मेरे मार्गदर्शक और गुरु कौन होंगे? गुरुजी, प्लीज डोंट लीव मी अलोन. ये कदापि शक्य नहीं प्रिय शबरी. तुम अकेले नहीं हो. तुम यही रहो और भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करो. भगवान राम एक दिन अपनी सीता को ढूंढते हुए यहाँ अवश्य आएंगे और तुम्हें अपना दर्शन देंगे. तब तक तुम उनका नाम स्मरण करते रहो. तुम जहाँ कहीं भी जाओ, जो कुछ भी करो,
बस उनका नित्य स्मरण करते रहो और हाँ, भगवान राम के आने की तैयारी करो। जय श्री राम। भगवान श्री राम की जय। शबरी had full faith in her guru. उस दिन से शबरी रोज भगवान राम के आने की तैयारी करती है। Bhagwan Ram is coming. I have to clean all the paths on all the sides of the ashram. अरे ये कांटे और पत्थर मेरे भगवान के पैरों को ना चुभे। जय श्री राम। ये फूल कितने सुंदर है। भगवान राम ये जरूर पसंद आएंगे। मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि एक दिन भगवान राम जरूर आएंगे। तब तक मुझे उनका इंतजार करना है। ये फल कितने मीठे हैं। ये तो मेरे राम के लिए हैं। ये तो खट्टे हैं। I cannot give this to भगवान। This fruit is also sweet. I will keep this in my ashram for my Bhagwan. और बहुत सालों के बाद शबरी की प्रतीक्षा सफल हो गई और भगवान राम आ गए। भगवान राम आ गए। भगवान राम आ गए। भगवान पधारिए पधारिए। हम धन्य हो गए आपके स्मरण में और आपके इंतजार में। मैं इतने सालों से जी रही हूँ भगवान। भगवान बैठिए विराजिए। भगवान प्रणाम। आप इतने दूर से आए हैं। आपको जरूर भूख लगी होगी। मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ये फल खाइए भगवान। भैया राम आप कैसे खाएंगे? ये तो टूटे हैं। These are fruit and berry. How can anyone offer such food to you, dear brother? These are the tastiest fruits I have eaten. तुम भी खाओ लक्ष्मण। Whosoever offers anything to me with love, I accept it, even half-eaten fruits. माता शबरी तो हमेशा मेरा ही स्मरण करती है। She think of me always. जैसे उसके गुरु माता ऋषि ने उसे कहा, वैसे वो पूर्ण श्रद्धा से मेरा ही स्मरण करती है। ये लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ। भैया राम तो तालाब का पानी शुद्ध हो गया है। चलो हम सीता माँ को ढूंढने चले। Lakshman, do you know how the water was purified? ये चमत्कार तो माता शबरी के चरणों की धूल से हुआ है। माता, तुम्हारी भक्ति शुद्ध है। तुम्हें मुझसे जो कुछ चाहिए मांगो। माय भगवान, मेरे प्यारे भगवान, I only want to love you with all my heart and serve you. तथास्तु तथास्तु। Shabri thus marched with Bhagwan, her constant smaranam, remembering the words of her Guru, gave her the strength to wait for Sri Ram for so many years. And Bhagwan came to her and granted her moksham. दिन भर हर काम करते समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बैर शबरी के जैसे
ये लाते नहीं। साई राम। Wow! In this skit of Shabri, we learned how having faith and serving the Lord will definitely gives us darshans of Lord. एक बार ऋषि मुनि नारद जी भगवान नारायण से मिलने वैकुंठ लोक आए। नारायण नारायण। कैसे हो नारद? क्या सब ठीक है? हाँ प्रभु, मैं तो ठीक हूँ, और वैसे भी मैं तो तीनों लोग घूमता रहता हूँ। नारद, जब तुम तीनों लोग घूमते रहते हो, तुम कौन से विचार के साथ जाते हो? भगवान, मैं तो सिर्फ आपका नाम नारायण नारायण स्मरण करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका नाम स्मरण करने से क्या लाभ है। हो नारद, तुम नाम स्मरण करते हो और तुम्हें इसका स्वाद का पता नहीं? जाओ उस कौवे से पूछो जो पेड़ पर बैठा है। नारायण नारायण। भगवान का नाम स्मरण करने से क्या लाभ है? नारायण नारायण। भगवान, जब मैंने उस कौवे से पूछा तो वो मर गया, क्या यही लाभ है? अच्छा, एक काम करो नारद, वहाँ पे एक गरीब ब्राह्मण का घर है, जिस घर में एक खूबसूरत तोता पिंजरे में है, उसे जाकर पूछो। नारायण नारायण। भगवान का नाम स्मरण करने से क्या फल प्राप्त होता है? नारायण नारायण। भगवान, जब मैंने उस तोते से पूछा तो वो भी मर गया, ये यही लाभ है? ये क्या पहेली है प्रभु? नारद, तुम्हें दृढ़ निश्चय से कुछ करते रहना चाहिए, जब तक तुम्हें सच का पता नहीं चल जाता। अच्छा, एक काम करो, तुम दूसरे ब्राह्मण के घर जाओ, कल उस घर में एक गाय का बछड़े का जन्म हुआ है, उससे जाकर पूछो। नारायण नारायण। भगवान का नाम स्मरण करने से क्या फल प्राप्त होता है? नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या फल है? पहले कौवा, फिर तोता और अभी बछड़ा, ये क्या पहेली है प्रभु? मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सच का पता नहीं लगा देता। नारायण नारायण। नारद, इतनी जल्दी मत करो, जल्दी करने से काम बिगड़ जाता है, थोड़े शांति से काम लो। तुम एक काम करो, तुम राजा के घर जाओ, उसके बेटे राजकुमार से पूछो। अगर मैं राजा के घर गया और राजकुमार मर गया तो राजा मुझे बंदी बना लेगा। नारद, तुम जाओ और राजकुमार से पूछो, घबराओ नहीं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आइए ऋषिवर, आपका स्वागत है, कहिए कैसा ना हुआ? नारायण नारायण। राजन, क्या मैं आपके राजकुमार से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? नारायण नारायण। प्रश्न और राजकुमार से? अच्छा, राजकुमार को बुलाया जाए। भगवान का नाम स्मरण करने से क्या फल प्राप्त होता है? नारद, क्या आपने हमें कुछ सीखा नहीं? आप तो भगवान नारायण का हर पल स्मरण करते हो, फिर भी आपको इसके लाभ का पता नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। पहले जब मैं कौवा, तोता और बछड़ा था, आप आए और पूछा भगवान का नाम स्मरण करने से क्या लाभ है? ये सुनते ही मेरा जीवन सफल हो गया और मैंने अपने प्राण त्याग दिए। नारायण नारायण। कहाँ कौवा, तोता
बछड़ा, गाय, कहाँ मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ, राजकुमार। नारायण नारायण। भगवान का नाम स्मरण करने से हमारा पद या स्थिति बदल जाती है। हम पशु योनि से मनुष्य बन जाते हैं। नाम स्मरण करने से भगवान के खींचे चले आते हैं और हमारा उद्धार होता है। नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। नारद की इस कथा से हमने नाम स्मरण की महिमा समझी और नाम स्मरण करने से नित्य आनंद मिलता है, यह जाना। साईं राम, प्रहलाद ने नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया। नारद जी ने प्रहलाद को भगवान विष्णु पे अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने की शिक्षा दी। इसीलिए नारद जी प्रहलाद के गुरु कहलाते हैं। गुरु की बताए मार्ग पर चल के हरि का स्मरण करते करते प्रहलाद भक्त प्रहलाद कहलाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम गलत नाम स्मरण कर रहे हो। तुमने जो शिक्षा प्राप्त की है वो शिक्षा देवों के लिए है। असुरों की शिक्षा अलग है, उनके भगवान मैं हूँ। तुमने सिर्फ मेरा ही नाम स्मरण करना चाहिए। मैं अजर अमर हूँ। पिताजी, मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आप मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन आप ईश्वर नहीं हैं। आपके हृदय में मेरे वासुदेव जरूर है, लेकिन आप सृष्टि के भगवान नहीं हो सकते। पुत्र, तुम अब छोटे हो, तुम नहीं जानते विष्णु की माया जाल को। विष्णु ने बड़ी निर्दयता से तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था। विष्णु हमारा शत्रु है। लेकिन पिताजी, चाचा ने भी तो धरती माँ का अपहरण किया था, और एक स्त्री का अपहरण करना बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए तो उन्होंने मिलना ही था। बस, अब बहुत बोल लिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम असुरों के राजा से बात कर रहे हो? मैं उनका भगवान हूँ। तुमने मुझे भगवान नहीं माना तो तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। पिताजी, मैं दंड से नहीं डरता, लेकिन सत्य यही है कि मेरे ही वासुदेव भगवान है। मेरे ही भगवान कण कण में है। मेरे ही भगवान सृष्टि के हर जीव में है। मेरे ही भगवान पालनहार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्रजा सिर्फ मुझे ही भगवान मानती है और तुम उस वासुदेव को भगवान मानते हो। पिताजी, आप राजा हैं तो आप सिर्फ अपने प्रजा के लिए देव समान हो सकते हैं, लेकिन सारी सृष्टि के भगवान तो सिर्फ मेरे वासुदेव ही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारा वासुदेव असुरों का शत्रु है। वो बड़ी चालाकी से असुरों का नाश करता है। मेरे वासुदेव न्यायमूर्ति है। वे कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। जो पुण्य करता है उस पे दया करते हैं, और जो पाप करता है उसे सजा देते हैं। पिताजी, जो बबूल बोएगा तो उसके हाथों में सिर्फ कांटे ही चुभेंगे। प्रहलाद, तुमने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं, ना मैं तुम्हारा पिताजी। पिताजी, ऐसे तो हर एक पिता अपने पुत्र के लिए मार्गदर्शक होता है, लेकिन यहाँ तो आप खुद अपना मार्ग भटक गए हैं। सिपाही, ले जाओ इसे यहाँ से। गरम तेल करके डाल दो इसके शरीर पे। इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा महाराज प्रहलाद पे गरम तेल डालने से भी उसे कुछ नहीं हुआ। और ओ अभी भी ओम नमो भगवते वासुदेव का नाम स्मरण करता है। होलिका,
अब तुम वरदान का इस्तेमाल करो और भस्म कर दो इस प्रहलाद को। देखता हूँ कैसे उसका वासुदेव उसको बचाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ बचाओ, अग्नि मुझे जला रही है, बचाओ बचाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होलिका, प्रहलाद, तुम्हारे वजह से मेरी बहन भस्म हो गई। अब तुम्हारा वध मैं करूंगा। तुम पे गरम तेल डाला, पहाड़ से फेंका, अग्नि में पिटाया। तुम हर बार कैसे बच जाते हो? तुम्हें पीड़ा नहीं होती? पिताजी, मेरे सामने जब भी कोई कठिनाई आती है तब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और वासुदेव का नाम स्मरण करता हूँ, तो वो कठिनाई मुझे छू भी नहीं सकती। पिताजी, मेरे वासुदेव मेरे साथ ही है, मेरे वासुदेव हर जगह है। अच्छा, तो इस लोहे के स्तंभ में भी है? जी पिताजी। सिपाही, इस लोहे के स्तंभ को गरम करो और बांध दो इसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री नरसिंह हरि समर्पयामि प्रकृते सर्वाणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। Prahlad teach us the lesson that even at the young age, having so much bhakti and smaranam, God himself came to rescue his devotee. ये सब कहानियों से हम ये समझ पाए कि God has to be remembered at all the time as long as we are conscious. Om Shri Sai Ram. After watching the skit by our Soul Blossom children, now let us listen to the senior devotees and their experiences as how they are able to be in constant smaran. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। देखते ही देखते हमारा साई परिवार कितना बड़ा हो गया। भगवान श्री संजय साई बाबा के सानिध्य में आके हमारे सबके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आया है। भगवान के लिए दिखाए गए रास्ते पर हम हमेशा सेवा एक्टिविटी करना, भजन कीर्तन करना और खास करके जो भगवान बताते हैं नाम स्मरण करना। नाम स्मरण करने से हमारा जीवन धन्य हो गया है और अद्भुत भी हो गया है। हाँ हर्षद भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। स्वामी की सन्निधि में आकर हमने नाम स्मरण का महत्व जाना है और स्वामी की सत्संग की प्रचिति मुझे आई जब मैं रोटी बनाते हुए ओम श्री साई राम का जाप कर रही थी और स्वामी का स्मरण कर रही थी, तो अचानक से रोटी पे ओम प्रकट हुआ। यही तो संदेश हमारे संजय स्वामी का है। सोते जागते उठते बैठते हर हमेशा उन्हीं की याद करना, उन्हीं की पुकार लगाना, हर जगह वो दिखते रहते हैं। सही कहा सिंह जी, स्वामी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हर बात सुनते हैं। हम जब विक्टोरी से वापस लौट रहे थे तब स्वामी का फोन आया, तब उन्होंने कहा आज जो आपने उद्घाटन किया उस समय मैं आपके साथ ही था और आज भी गाड़ी में जब तब भी मैं आपके साथ हूँ। मैं हर पल हर क्षण आपके साथ ही रहता हूँ। मुझे याद है कोई भी कार्य अगर भगवान के नाम पे शुरू किया जाता है
स्मरण से वो कार्य हमेशा सफल होता है। भगवान का ये वचन सुनकर मुझे रामायण की वो किस्सा याद आ गया कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब भगवान राम के नाम से, स्मरण से पत्थर भी पानी में तैरने लगा। हाँ सुनील भाई, आप सही बोल रहे हो। ये क्योंकि आदमी का मन में राम और मुख में साईं। हाँ सुंदरेशन भाई, जब सब डिवोटी स्वामी के साथ कैलाश मानसरोवर जा रहे थे तो समूह में नहीं जा पाए, तो बड़ा दुख हो रहा है। पता है स्वामी ने ऐसे करके कैलाश लिंगम खुद को किया। स्वामी तो हृदय निवासी है, उनके रूप तो अनंत है। मैं लिंगम रूप में हर दिन उनका अभिषेक करके दर्शन करती हूँ। वो चमत्कार करते इसलिए भगवान नहीं है, वो भगवान है इसलिए उनके द्वारा चमत्कार करते हैं। सही कहा। हर गुरु तो भगवान समान ही होता है, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान गुरु करके आपके लाइफ में आना ये अद्भुत बात है। और इसके प्रचिति मुझे जब आई, जब हम लोग मनोकामना देवी के नेपाल में मनोकामना देवी का दर्शन करके लौट रहे थे और त्रिशूल नदी के किनारे स्वामी के साथ थे, तो हरा पानी देखकर स्वामी ने हरे रंग का शिवलिंग उद्भूत किया। आज भी वो स्मरण करके मेरा रोमांच खड़ा हो जाता है। Yes, Dinesh, yet another supernatural power of Swami. While having satsang with Swami at night, sand dunes in Muscat, suddenly Swami slowly raised his hand and made moon appear in the sky. अच्छा, मतलब स्वामी सिर्फ पृथ्वी पर ही सृष्टि नहीं करते, बल्कि उनका प्रभुत्व ब्रह्मांड में भी है, इसीलिए तो चंद्र को भी उदय करते हैं। हमारे स्वामी का हर तत्व में प्रभुत्व है। तो स्वामी को जब हम याद करके करते हैं तो अपने आप को कभी अकेला नहीं महसूस करते। और जीवन में कुछ भी समस्या आती है तो अंदर से स्वामी हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो समस्या कितनी भी जटिल हो, लेकिन उससे सहन करने की ताकत मिलती है। जी कविता भगवान कहते हैं गॉड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सच कहा आप सभी लोगों ने। हमारे अनंत स्वरूप संजय स्वामी की महिमा अनंत है। हमारे घर में जब भी पूजा होती है, मैसेज पूजा करती हैं, तो अचानक से ऑटोमेटिकली कभी कुमकुम का तो कभी विभूति का तिलक उनके माथे पर रह जाता है। ये स्वामी की कृपा ही है। Yes, God is omnipresent. भगवान कहते हैं कि He is always there. हर पल हर क्षण हमारे साथ ही रहते हैं। He is omnipresent, omniscient. आज स्वामी का स्मरण करके हम हर पल स्वामी को हमारे साथ होने की अनुभूति करते हैं। ये कोविड टाइम में देखो लोग कितने परेशान हैं। आज हम सब साई डिवोटी यहाँ पे बैठे स्वामी का सत्संग करके हमारा समय बड़ी शांति और खुशी से बिता रहे हैं। सही कहा धर्मेंद्र भाई जी। आपके विभूति हाउस के बारे में भी हमें बताइए। जी जी जरूर। आज मैं आपको भगवान श्री संजय सेवा के महिमा की कुछ बात बताने जा रहा हूँ। थोड़े दिन पहले मुझे चैप्टर से फोन आया था कि 200 से 250 पैकेट विभूति का बनाना है। घर में देखा तो विभूति के डब्बे में सिर्फ 1 चम्मच विभूति थी। हम लोग घर के सब मिलके भगवान को स्मरण किया, भगवान की प्रार्थना की, तो कुछ ही समय में विभूति का पूरा डब्बा भर गया। हमारे नजरों के सामने हमने देखा कि विभूति का पूरा डब्बा भर गया। स्वामी हमारे भगवान श्री संजय सेवा वहाँ नेपाल बैठे और यहाँ विभूति भिजवा दी। हमारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। ऐसे ही हनुमान जयंती में सिंदूर और नवरात्रि में माता जी के फोटो से कुमकुम और श्रावण महीने में मंदिर में शिवलिंग से रुद्राक्ष की वर्षा होती है। हम भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारी बात सुन लेते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि भगवान हमारे साथ है। जी धर्मेंद्र भाई, इसलिए तो प्रभु हमेशा कहते हैं कि नाम स्मरण एक चमत्कारी औषधि है जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। और नाम स्मरण करने से इस घोर कलयुग में हमें मुक्ति का एक सरल मार्ग मिलता है। हाँ अरशद भाई, हम नींद में भी स्वामी के सपने देखते हैं और उठते ही स्वामी के विचार करते हैं। आज मैं भगवान श्री संजय साई बाबा को याद करके उनका स्मरण करके मेरा भाव व्यक्त करता हूँ। स्मरण करूं मैं तेरा और आंख में आंसू आ जाए, स्मरण करूं मैं तेरा और आंख में आंसू आ जाए। तू बैठा नेपाल में, मैं बैठा मुंबई में, बातें करूं मैं तुझसे और आंख में आंसू आ जाए। चेहरा तेरा, वाणी तेरी, मन में गुनगुनाऊं और आंख में आंसू आ जाए। कितने जन्मों से ये आंसुओं का प्यासा था, ये सोचकर आंख में आंसू आ जाए। हे संजय साई,
रखेगा प्यासा तू मुझको और प्यास बुझाएगा भी तू ही। ये सत्य जानकर आंख में आंसू आ जाए। अब यही इच्छा है कि हर क्षण मैं स्मरण करूं तेरा और आंख में आंसू आ जाए। साईं राम, साईं राम। आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री संजय साई बाबा को आपने आपके तन मन में उतार लिया है। साईं राम, साईं राम। What divine experiences have been narrated. It shows how we can do Smaran at any time, every time, and all time. Om Shri Sai Ram. Smaranam is remembering God at all time. But today's youth are so busy in their day-to-day life that they don't have this time. But today our Mumbai youth will tell us how they are constantly remembering the God. So let us listen how they are able to do this. रौनक क्या कर रहा है? 11 बज गए। क्या 11 बज गए? मैंने तो सोचा था कि आई विल जस्ट यूज फोन फॉर 5 मिनट्स, पर पता ही नहीं चला कब 11 बज गए। तेरा एग्जाम है ना? आई हैव माय एग्जाम्स इन द कमिंग वीक, बट फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। व्हेनेवर आई सिट टू स्टडी, किसी ना किसी का फोन आ ही जाता है। देख, टेंशन मत ले, डिस्ट्रैक्शन तो आएगा बिकॉज योर थॉट्स आर नॉट अलाइन। थॉट्स आर नॉट अलाइन? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। डिस्ट्रैक्शन occurs due to multiple thoughts running in your mind. To get rid out of this, you should first align your thoughts and also regain your focus. पर ये realignment of thought करूँ कैसे? रौनक, the simple solution is नाम स्मरण। क्या नाम? रौनक, नाम स्मरण means keep chanting Swami's name, which will ultimately help us to regain your focus. अब समझा, डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए थॉट्स को अलाइन करना पड़ता है, और थॉट्स को अलाइन करने के लिए द ओनली की इज नाम स्मरण। थैंक यू भाई। रौनक, हमेशा याद रखना, कोई भी काम करो हमेशा भगवान को याद करके करो, which will help us to gain your success. ओके भाई, गॉट इट। थैंक यू सो मच। साईं राम। We get distracted due to so many thoughts at a time running in our mind. Nam Smaran helps us to reduce our distraction and increase our focus. अरे what happened? अरे यार, वो राहुल फिर से क्लास में टॉप कर गया। अरे तो उसमें क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? मुझे भी चाहिए कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, शाबाशी दें। देखो, इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन। हाँ पता है, ज्यादा पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। देखा, सॉल्यूशन तो तुम्हें पता ही है, लेकिन ये वो सॉल्यूशन नहीं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा था। तो कौन सा सॉल्यूशन बताने जा रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस का सॉल्यूशन बताने जा रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम नदी से पानी डायरेक्टली पी सकते हो? नहीं, इसमें बहुत ही गंदगी होती है। करेक्ट, देखा, एक और बार आंसर तो तुमने दे ही दिया है। लेकिन इसका और नेगेटिविटी का रिलेशन क्या है? ठीक से समझाओ ना भाई, सब बाउंसर ही जा रहा है। अच्छा, हमारा मन नदी की तरह होता है और गंदगी हमारे नेगेटिव इमोशंस है। ओके, जब हम नाम स्मरण करते हैं तब हम अपने मन को प्योर बनाते हैं। बस दिन के 30 मिनट्स निकाल के करो और देखो क्या फर्क पड़ता है। नाम स्मरण करने से हम अपने मन के नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस से कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं अब समझा। कल से रोज मैं 30 मिनट तक नाम स्मरण करूंगा। थैंक्स भाई। बहुत बार हम लाइफ में प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक के अपने इमोशन को बेहतर बनाए थ्रू प्रभु सेवा, तो सब प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। प्रणाम स्वामी। Sai Ram, brother. Sai Ram. Let's begin the satsang. Yes, Swami says that we should relive the divine experiences. I personally feel blessed and blissful when I think about those experiences. Me too. Even in difficult times, this helps me. मुझे संत कबीर का एक दोहा याद आया। अच्छा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। सही बात है भाई।
तो हमें सुख में भी स्मरण करना चाहिए। हाँ हाँ। When I remember him, I feel his presence and I feel loved as well. Yes, he is always there with us. कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। We only need to be aware, and Smaranam helps us to be aware. We can do his Smaranam while cooking, while having food, before working, and before sleeping. Yes, Saira. As you know, Gayatri Mantra chanting has become a part of our life. हाँ, स्वामी ने एक बार कहा था कि अगर हम नहाते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हम हमारे अंदर के ईश्वर का अभिषेक करते हैं। यस, साई राम। गायत्री मंत्र is the most powerful mantra. True. Now, let me share one of my personal experiences with you. Once I was having very high fever. In the shlokas, it is written that if we read Lalita Sahasranama, the fever goes away. Yes. Hence, I read it during my fever, and my fever went away. Yes. This was a great miracle. Sai Ram. अभी मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। जरूर, तुम्हें तो पता ही है कि फ्राइडे को गॉड्स ग्लोबल ऑनलाइन डिवाइन सत्संग रहता है। हाँ, स्वामी ने कहा था कि सत्संग करना भी मेरा नामस्मरण करना है। तो स्वामी कई बार खुद सत्संग में आए हैं और मैंने कई प्रश्नों का निवारण किया है। सत्संग करके मुझे बहुत आनंद आया। ग्रेट, इसका मतलब तुम्हारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए। हाँ, तुम्हारे साथ सत्संग करके अच्छा लगा, मुझे भी। साई राम। Reliving the divine experiences, doing satsang and jap are also the ways of doing smaran. Sai Ram Didi. Sai Ram. Acha, I've always been inquisitive to know how are we different from the other youth? Our love, our faith, and complete surrender in Swami makes us different. And no matter what you do, Swami को हमेशा स्मरण करते ही करना हमेशा youth बनाता है. Acha, so how can I become a 24/7 devotee as a youth in this modern world? Nice question. So in this modern world, we have lot of energy और हमें समझ में नहीं आता how to use that energy and because of that we lose our balance. तुमने कभी देखा है गांव में लेडीज वो मटका लेके चलती हैं? They talk, they walk, but still वो मटका गिरता नहीं है. You know why? Because their entire inner focus is on matka. Similar way, our entire inner focus should be on Swami. No matter what you do, you go out with friends, you eat, you study, but your entire inner focus should be on Swami. इसी को तो प्रभु स्मरण कहते हैं। और याद है स्वामी हमेशा क्या कहते हैं हम सबसे? Yeah, he says, students are my only property. तो ये हम सारे यूथ का फर्ज बनता है कि हम स्वामी को हमेशा स्मरण करें and be grateful to him for giving us this opportunity to be Sai Youth. Now I hope you understood how to be 24/7 devotee. It's easy, right? Yes, now I think I know how to become a 24/7 devotee. And I also remember Swami once said, Sarvada Sarvakaleshu Sarvatra Hari Chintana. Wow, very nice. Sai Ram. Our inner focus should always be on Swami, no matter what we do. Just the way those ladies have their inner focus on water pots while carrying them. ओम श्री साई राम। अब हमारे यूथ एक हृदय स्पर्शी स्मरण का भजन प्रस्तुत करेंगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हर्ज है, ये नेक सी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। What a divine bhajan, asking God's presence at all the time. Om Shri Sai Ram. Now let us offer our Mangal Aarti to our beloved Bhagwan, Shri Sanjay Sai Baba. Om Jai Sanjay Baba, Jai Sanjay Baba, Satya Sanatana Nirmal, Satya Sanatana Nirmal, हे जग के दाता। ओम जय संजय बाबा।
सुमधुर सुंदर वैभव कमल दले क्षण स्वामी कमल दले क्षण आशायांबर धारण आशायांबर धारण पंकज चरण ओम जय संजय बाबा परम धाम परमेश्वर परमानंद नमो स्वामी परमानंद नमो परम पूज्य साईश्वर परम पूज्य साईश्वर आत्मानंद नमो ओम जय संजय बाबा लक्ष्मी नारायण गौरी शुभदायक भगवान स्वामी शुभदायक भगवान सकल जगत के रक्षक सकल जगत के रक्षक मंगल कर प्रभु रे ओम जय संजय बाबा ओम जय संजय बाबा स्वामी जय संजय बाबा सत्य सनातन निर्मल सत्य सनातन निर्मल हे जग के दाता ओम जय संजय बाबा ओम जय संजय बाबा स्वामी जय संजय बाबा शांति 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 समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय।